السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج ہم اس کتاب دروس اللغت العربیہ کا جو پہلا پارٹ ہے اس کا لیسن نمبر 13 دیکھیں گے، اور اس پہلے پارٹ کا جو دوسرا پارٹ ہے اس مدینہ عربک ریڈر میں، اس میں یہ تیسرا لیسن ہے، کیونکہ انہوں نے اس پہلے والیوم کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ اصل میں یہ لیسن نمبر 13 ہے، جیسے کہ پہلے والیوم میں موجود ہے، مدینہ عربک مدینہ بکس کے پہلے والیوم میں، بہرحال۔ اور یہ جو تیسرا لیسن ہے، اس میں آتھر بیان کرتے ہیں، کتاب کے آتھر: ان دس لیسن وی لرن ان دس لیسن اس لیسن میں ہمیں پڑھنا ہے دا پلیورل آف ناؤنس اینڈ ایڈجیکٹیوز۔ اس میں ہمیں پڑھنا ہے پلیورل الجمع۔ عربک میں جو ناؤنز ہے یا ایڈجیکٹیوز، اسم جو ہے، نمبر کے اعتبار سے وہ تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ ایک تو ہے مفرد، مفرد کا مطلب ہے جس سے ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مثنیٰ، مثنیٰ کا مطلب ہے ڈیول، مفرد کا مطلب ہے سنگولر، ڈیول کا مطلب ہے جس سے ہمیں دو چیزیں سمجھ آتی ہے، مفرد کا مطلب ہے جس سے ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے۔ تیسرا ہے پھر جمع، جمع، جم کا مطلب ہے پلیورل، اس کا مطلب ہے جس سے ہمیں تین یا تین سے زیادہ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ یعنی عربک میں ہم خالی سنگولر اور پلیورل میں ناؤنس کو کیٹیگرائز نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو مفرد، مثنیٰ اور جمع میں کیٹیگرائز کرتے ہیں، اور اسی کے اعتبار سے پھر گرامیٹیکل رولز بھی ہوتے ہیں۔ مفرد کا مطلب ہے جس سے ہمیں ایک ناؤن، ایک چیز سمجھایا جائے۔ مثنیٰ کا مطلب جس سے ہمیں دو چیزیں سمجھائے، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا جو ہے اسم کا قسم، وہ ہے جمع، مطلب پلیورل۔ کہتے ہیں اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے، انگلش میں جو ہوتے ہیں، ان انگلش ایڈجیکٹوز ہے نو پلیورل فارم۔ مثلا ایک ایڈجیکٹو ہے گڈ، اگر ہم کہیں گے وی سے گڈ مین، مین سنگولر اس کے لیے بھی کہیں گے گڈ، مین جو پلیورل ہے مین کا اس کے لیے بھی کہیں گے گڈ۔ بٹ ان عربک ایون ایڈجیکٹوز ہے پلیورل فارم، مگر عربک میں ایڈجیکٹوز کے لیے بھی پلیورل فارم ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ان انگلش یو ہیو ٹو کائنڈس آف پلیورل فارم، انگلش میں دو پلیورل فارم کے دو کائنڈس ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے ساؤنڈ پلیورل، دوسرا ہوتا ہے بروکن پلیورل۔ ساؤنڈ پلیورل کا مطلب ہے ان دی ساؤنڈ پلیورل دا ورڈ ریٹینز اٹس اوریجنل فارم۔ ساؤنڈ پلیورل کا مطلب ہے کہ جب ہم سنگولر ناؤن کو پلیورل میں کنورٹ کرتے ہیں، اس کا اوریجنل جو فارم ہوتا ہے وہ انٹیکٹ رہتا ہے، وہ برابر رہتا ہے۔ جیسے بک، یہ بن گیا بکس، خالی ایس ایڈ ہو گیا، بک اپنا جو اوریجنل فارم ہے وہ انٹیکٹ رہا، وہ سیف رہا، اس میں کوئی چینج نہیں آئی۔ اسی طرح پین، یہ بن گیا پینس، اس کو کہتے ہیں ساؤنڈ فارم، ساؤنڈ پلیورل فارم۔ دوسرا ہوتا ہے بروکن پلیورل، ان دی بروکن پلیورل دا اوریجنل فارم آف دا ورڈ از چینج، اس میں تبدیلی آتی ہے ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ۔ جیسے مین، اس کا پلیورل ہے مین، دیکھیے اے تبدیل ہو گیا ای میں، وومن اس کا پلیورل ہے وومن، یہاں پہ بھی چینج ہو گیا، ورڈ چینج ہو گیا۔ عربک میں بھی کچھ اسی طرح ہے۔ ان عربک وی ہیو دیز ٹو کائنڈس آف پلیورل فارم، ساؤنڈ اینڈ بروکن۔ اب اس کو عربائز کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ عربک میں جو پلورل ہوتے ہیں وہ کیسے کیٹیگرائز ہوتے ہیں۔ پلورل جو ہے الجمع، الجمع، یہ اس کی دو براڈ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے جم جمع سالم، یا جمع سالم، آپ کہہ لیں جمع سالم۔ سالم کا مطلب ہوتا ہے ساؤنڈ، جیسے انگلش میں ہوتا ہے ساؤنڈ پلورل، اس کو ہم عربک میں کہتے ہیں جمع سالم۔ دوسرا ہوتا ہے جمع مکسر، یا آپ کہہ لیں، جمع مکسور بھی آپ کہہ لیں۔
मकसूर का मतलब ये होता है ब्रोकन, मुकस्सर का भी मतलब होता है ब्रोकन, यानी ब्रोकन प्लूरल। यानी जब ये सिंगुलर प्लूरल में तब्दील हो जाता है, इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो टूट जाता है, उसमें तब्दीली आ जाती है। और ये जो जमा सालिम है, ये फिर मजीद कैटेगराइज होते हैं जमा मुजक्कर सालिम है, यानी मेस्कुलाइन और फेमिनाइन के एतबार से फिर हम कहते हैं जम ओ मुजक्करिन सालिमुन। ये सालिम यहाँ पर रिलेटेड है जम के, न कि मुजक्कर। यानी ऐसा साउंड प्लूरल जो मुजक्कर नाउन्स का प्लूरल होता है, यानी ऐसा प्लूरल फॉर्म, ऐसा साउंड प्लूरल फॉर्म जो मुजक्कर नाउन्स का या मुजक्कर एडजेक्टिव्स का प्लूरल फॉर्म होता है। दूसरा होता है जम मुअन्नसिन, जम मुअन्नसिन सालिमुन, यानी ऐसा साउंड प्लूरल जो मुअन्नस के लिए होता है। इसी तरह जम मुकसर प्रोकन प्लूरल जो है ये भी दो किस्मों का होता है, लेकिन उस तफसील में हम नहीं जाएंगे, हम खाली इसके पैटर्न्स देखेंगे। एक तो होता है जम किल्ला, ये मैं खाली आपको एक आइडिया देने के लिए फिलहाल कह रहा हूँ। दूसरा होता है जम कसरा, ये हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे, ये जम किल्ला जम कसरा, इसकी खाली हम पैटर्न्स आज देखेंगे, उनको हम मजीद इन दो कैटेगरीज में कैटेगराइज नहीं करेंगे। फिलहाल हम ये याद रखें कि प्लूरल जो है अरबिक में, या हम उससे पहले जाए, मैंने कहा इसम जो होता है, नाउन जो होता है, नंबर के एतबार से वो हम तीन कैटेगरीज में उसको कैटेगराइज करते हैं, मुफरद, मुसन्ना और जमौन। मुफरद यानी सिंगुलर, जिससे हमें एक चीज़ समझाए, मुसन्ना यानी ड्यूअल, जिससे दो चीज़ें समझाती है, और लास्ट में जमौन प्लूरल, जिससे तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ें समझाती है। और प्लूरल फॉर्म जो होता है अरबिक में, दो दो कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं, जम सालिम यानी साउंड प्लूरल, और जम मुकसर यानी ब्रोकन प्लूरल। और जमा सालिम जो है वो मजीद उसकी दो तकसीमें होती है, जम मुजक्कर सालिम और जम मुअन्नस सालिम, यानी साउंड मेस्कुलाइन प्लूरल, साउंड फेमिनाइन प्लूरल। और जमा मुकसर जो होता है वो भी दो कैटेगरीज में होता है, जम किल्ला और जम कसर, जिसके हम आज पैटर्न्स देखेंगे। अब हम वापस लौटते हैं शेख के नोट्स की तरफ। शेख कहते हैं इन अरबिक वी हैव दीज टू काइंड्स ऑफ प्लूरल फॉर्म, साउंड एंड ब्रोकन, यानी जम ओ सालिमिन और जम ओ मुकस्सरिन। द साउंड प्लूरल यानी जम उन सालिमिन, या तो वो इधर मेस्कुलाइन होगा या फेमिनिन होगा, जैसे मैंने भी कहा, यानी या तो जमा मुजक्कर सालिम होगा या जमा मुअन्नस सालिम होगा। द साउंड मेस्कुलाइन प्लूरल यानी जम ओ मुजक्करिन सालिमुन। ये सालिम मैंने जैसे कि मैंने कहा ये जमा से रिलेटेड, ये जमा का यहाँ पर नात है, जम ओ मुजक्करिन सालिमुन, यानी मुजक्कर का साउंड प्लूरल। उसकी एंडिंग कैसी होती है, उसके लास्ट पर वाव और नून ऐड होता है, यानी ये ऐसा जमा होता है प्लूरल मैस्कुलाइन सिंगुलर नाउन का, जिसको हम ऐड करते हैं लास्ट पर वाव और नून, यानी ऊन मुस्लिमून, मुस्लिमुन ये बनेगा मुस्लिमून। देखिए सिंगुलर फॉर्म जो है वो इंटैक्ट रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आई। मीम सीन लाम मीम, मीम सीन लाम मीम, हरकत भी सेम रही, दम्मा सुकून कसरा दम्मा, दम्मा सुकून कसरा दम्मा, खाली ऐड हुआ वाव और नून, और इस नून पर फतहा है, और इस नून पर जो है फतहा है। यानी ये ऐसा जमा होता है, जमा मुजक्कर सालिम ऐसा जमा होता है जिसके लास्ट पर हम ऐड करते हैं वाव और नून। मुस्लिमुन ये बनेगा मुस्लिमून, मुदर्रिसुन ये बनेगा मुदर्रिसून। और जब हम कहेंगे मुस्लिमून या इसी तरह मुदर्रिसून, इसको हम कहेंगे जमा मुजक्कर सालिम, यानी ये ऐसे सिंगुलर नाउन का जमा है जो मेस्कुलाइन है। अब जो जमा मुअन्नस सालिम है, साउंड फेमिनाइन प्लूरल, उसको हम कैसे बनाते हैं, लास्ट में ऐड करते हैं अलिफ और ता। मुस्लिमातुन ये बनेगा मुस्लिमातुन, अलिफ और ता ऐड होगा। मुहंदिसतुन ये बनेगा मुहंदिसातुन। इसलिए जमा जम ओ मुअन्नसिन सालिमुन, ये ऐसा यानी साउंड फेमिनाइन प्लूरल, ये ऐसा प्लूरल होता फॉर्म होता है जिसके लास्ट पर हम ऐड करते हैं अलिफ और ता। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मुहंदिसतुन मुहंदिसातुन। फिर कहते हैं नोट दैट इन दिस प्लूरल फॉर्म द सिंगुलर हैज शॉर्ट ए बिफोर द
यानी मुस्लिमतुन। देखिए मुस्लिमतुन। देखिए मीम जबर मा, यानी शॉर्ट वॉल मा, न कि मा। लेकिन जब हमने इसको प्लूरल बन गया बनाया, ये बन गया मुस्लिमा। अभी लॉन्ग वॉल बन गया मुस्लिमातुन। सिंगुलर फॉर्म में था ता मरबूता यानी गोल था, प्लूरल फॉर्म में है खुला हुआ था मुस्लिमातुन। मीम पर फतह था, मीम के बाद आ गया अलिफ, यानी इसकी आवाज़ जो है वो इलोंगेट हुई। वही यहाँ पे शेख कहते हैं कि हैज़ अ शॉर्ट ए, यानी फतह है, खाली फतह है ता मरबूता से पहले मुस्लिमतुन। एंड द ता साउंड, ता इज राउंड, और इसका जो लास्ट पर सिंगुलर फॉर्म में ता है वो राउंड है। वेयर एज इन द प्लूरल जो ए साउंड है यानी फतह का साउंड है वो लॉन्ग है, क्योंकि इस फतह के साउंड के बाद आ गया अलिफ, बन गया मुस्लिमा। पहले था मा, बन गया मा। और ता मरबूता जो है उसके बदले आ गया ता, यानी ओपन ता। एंड द ता इज ओपन मुस्लिमातुन। In pronunciation, the only difference between the singular and the plural is the shortness and length of the fatha. यानी मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। उसके बाद कहते हैं द ब्रोकन प्लूरल, देयर आर मोर देन 20 पैटर्न्स ऑफ द ब्रोकन प्लूरल। और जो वो 20 पैटर्न्स है, यानी जमा मुकस्सर जिसको हमने कहा, वो दो कैटेगरीज में होते हैं, जम अकेला और जम कसरा। उन दोनों के जो पैटर्न्स होते हैं वो 20 से ज़्यादा होते हैं। सम आर गिवन हियर, इस चैप्टर में हमें उसमें से कुछ पैटर्न्स पढ़ने। यानी मसलन नजमुन, ये एक नाउन है। इसका जब हम ब्रोकन प्लूरल बनाएंगे, अरब इसका ब्रोकन प्लूरल रखते हैं इस फॉर्म पे, फुऊलुन। नून फा की जगह आएगा, जीम आइन की जगह आएगा, फिर ऐड होगा बीच में वाव, मीम लाम की जगह पे आएगा। नजमुन ये बनेगा नुजूमुन, फुऊलुन। इसी तरह किताबुन ये बनेगा कुतुबुन। देखिए इसको ब्रोकन प्लूरल हमने अब क्यों कहा, क्योंकि इसमें ऐड हो गया बीच में वाव, ये टूट गया। नजमुन, इसके जो सीरीज ऑफ सीक्वेंस जो ऑफ लेटर जो है वो तब्दील हो गया। नून के बाद जीम है, यहाँ भी नून के बाद जीम है, फिर जीम के बाद सिंगुलर फॉर्म में मीम था, लेकिन यहाँ पे जीम के बाद वाव आ गया, बीच में वाव आ गया, इसने इसको तोड़ दिया, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रोकन प्लूरल। नजमुन बन गया नुजूमुन। पैटर्न है फुऊलुन। किताबुन बन गया कुतुबुन। एक तो ये अलिफ इसमें से गिर गया, और हरकत भी चेंज होंगी। काफ पर दम्मा आ गया, ता पर दम्मा आ गया, जबकि यहाँ पर ता पर फतह था। और इसका पैटर्न है फुउलुन, फुउलुन, कुतुबुन। और ये सारे पैटर्न है ब्रोकन प्लूरल की। जबलुन ये बन गया, ये इसका पैटर्न है, इसका जो अरबिक में प्लूरल है वो है जिबालुन। इसका वजन है, पैटर्न है फिआलुन, जिबालुन। ताजुरुन इसका प्लूरल है तुजारुन, फुआलुन। कलमुन इसका प्लूरल अरब रखते हैं अकलामुन, अफ़आलुन। जमीलुन इसका प्लूरल है जुमलाउ, एक ही दम्मा, फुअलाउ। दिस इज विदाउट तनवीन, यानी इस पैटर्न में तनवीन नहीं आता, इसको हम कहते हैं ममनूउन मिन सर्फ, जो हम लास्ट चैप्टर में देखेंगे इंशाल्लाह। फिर सदीकुन इसका पैटर्न है अज़दिक़ाउ। हाँ मीनिंग सेम रहेगा, लेकिन खाली नंबर जो है, नंबर में चेंज आएगा, क्वांटिटी में चेंज आएगी। पहले सिंगुलर था, एक चीज़ पर दलालत करता है, अब ये तीन तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों पर दलालत करता है, डिनोट करता है मोर देन थ्री या थ्री से ज़्यादा। सदीकुन अज़दिकाउ, सदीकुन दोस्त, अज़दिकाउ यानी बहुत सारे दोस्त। अखुन इसका प्लूरल है इखवतुन। पैटर्न है फ़िअलतुन, अखुन, इखवतुन, फ़िअलतुन। अख का एक और जमा भी है इखवान, इखवानुन। यानी अख के जो है दो प्लूरल के दो पैटर्न है, एक तो इखवतुन, और अगर आप कहीं पे इखवानुन देखेंगे, वो भी इसका दूसरा प्लूरल फॉर्म है। यानी कुछ नाउन्स के एक से ज़्यादा पैटर्न्स हो सकते हैं प्लूरल फॉर्म की। द स्टूडेंट इज एडवाइज टू लर्न द प्लूरल फॉर्म ऑफ एवरी नाउन एंड एडजेक्टिव ही लर्न, यानी जो भी नाउन स्टूडेंट को आएगा, उसको किताब में आएगा, उसका उसके साथ साथ उसको प्लूरल फॉर्म भी सीखना चाहिए। सो ये कुछ पैटर्न्स है ब्रोकन प्लूरल के। फ़ुऊलुन, फ़ुउलुन, फ़िआलुन,
फ़ुआल ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ कहीं भी कोई पैटर्न है खाली हमें पहचानना है। जब हम देखेंगे अकलाम, हमें जहन में आना चाहिए अफ़आल, जुमलाउ फ़ुआलाउ, जिबाल फ़िआल, ये फिर जहन में खुद आ जाते हैं। अस्दिकाउ अफ़इलाउ, इख्वतुन फ़िअलतुन। ये हमें याद रखना है कि अरबिक में जो रूट होते हैं, रूट लेटर जो होते हैं वो तीन होते हैं, फ़ा, चाहे नाउन हो या वर्ब हो, फ़ा, आइन और लाम। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर शेख ने लिखा है 2 3 1, इसका मतलब है कि ये रूट लेटर्स है। 1 का मतलब है फ़ा कलमा, 2 का मतलब है आइन कलमा, 3 का मतलब है लाम कलमा। देखिए जैसे सदीकुन, सदीकुन, सदीकुन फ़ाइलुन, अज़दिकाउ अफ़इलाउ, अफ़इलाउ, ये रूट लेटर्स है। अखुन फ़िअलतुन, इसका प्लूरल है इख्वतुन फ़िअलतुन। फिर दूसरे पॉइंट में कहते हैं शेख, द प्लूरल ऑफ हाजा एंड हाज़िही इज हाउलाई। हमने इसे पहले देखा था, हाजा इसका मुअन्नस है हाज़िही। इसी तरह हमने देखा था ज़ालिका, उसका मुअन्नस है तिलका। अब हाजा और हाज़िही, यानी करीब चीज़ के लिए जो इसमें इशारा है, वो प्लूरल सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए हाजा है, और सिंगुलर फेमिनिन के लिए हाजी है। अब प्लूरल के लिए कौन सा है, वो है हाउलाई, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। द प्लूरल ऑफ हाजा एंड हाज़िही इज हाउलाई, हाजा ताजुरुन, हाउलाई तुज्जारुन, हाज़िही मुदर्रिसतुन, हाउलाई मुदर्रिसातुन। हाउलाई यहाँ पर भी प्लूरल, प्लूरल मैस्कुलिन के साथ भी हाउलाई, और प्लूरल फेमिनिन के साथ भी हाउलाई। हाजा और हाजी दोनों का प्लूरल फॉर्म है हाउलाई। यानी जब हमें करीब प्लूरल चीज की तरफ इशारा करना होगा, तब हम कहेंगे हाउलाई। अलबत्ता यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, कि जब वो प्लूरल करीब चीज आकिल हो, तब अरब इस्तेमाल करते हैं हाउलाई। अब अगर वो प्लूरल नजदीक चीज गैर आकिल हो, तब अक्सर जो अरब है इस्तेमाल करते हैं हाजी। उसकी वजह यह है कि जो प्लूरल गैर आकिल चीज है, अरब उसको एक मुअन्नस की तरह ट्रीट करते हैं। यानी गैर आकिल जमा इज इक्वल टू वन फेमिनाइन। ये समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब कोई गैर आकिल चीज हो और वो जमा हो, मिसाल के तौर पर कुतुबुन, अभी हमने देखा कुतुबुन, कुतुबुन ये किताब की जमा है, और किताब जो है ये गैर आकिल चीज है। अगर हमें इसकी तरफ इशारा करना होगा, हम नहीं कहेंगे हा उलाई कुतुबुन, हम कहेंगे हाजिही कुतुबुन। हम इसकी तरफ इशारा करेंगे सिंगुलर फेमिनाइन इसमें इशारा से, जो है हाजी। क्योंकि अरब गैर आकिल जमा को एक फेमिनाइन की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए कहते हैं नो डैट हा उलाई इज मोस्टली यूज्ड विद ह्यूमन बींग्स, यानी आकिल चीजों के साथ। इट्स यूज टू रेफर टू नॉन ह्यूमन बींग्स इज रेयर, यानी गैर आकिल जमा के साथ हा उलाई, यानी गैर आकिल जमा करीब चीज के लिए हा उलाई इस्तेमाल करना, ये रेयर है, यानी बहुत कम ऐसा होता है। अरब मोस्टली गैर आकिल जमा के लिए हाज ही इसमें इशारा इस्तेमाल करता है, वो हा उलाई को तो वो नहीं कहते। फिर कहते हैं द प्लूरल ऑफ हुआ, ही इज हुम। हुआ यानी वो एक मर्द, हुम वो सब मर्द, हुम दे, यानी प्लूरल मैस्कुलाइन। Unlike the singular हुआ, the plural whom is used to refer only to human beings। यहाँ पर भी यही मसला है, कि जब हमें गाइब प्लूरल ह्यूमन बींग्स के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करना होगा, हम कहेंगे हूँ। अब अगर हमें गाइब प्लूरल गैर आकिल चीज की तरफ कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करना होगा, तब हम कहेंगे हिया। हुआ मुदर्रिसुन, हुम मुदर्रिसून, मुदर्रिसून जमा है तब कहेंगे हुम। दे आर टीचर्स, हुआ मुदर्रिसुन, ही इज अ टीचर। इसी तरह द प्लूरल ऑफ हु इज हुम। हुआ का भी प्लूरल है हूँ, और हु यानी जो जर का प्रोनाउन है, जैसे किताब हु। अब अगर हमें कहना होगा किताब हु का मतलब है उस एक मर्द की किताब, अब अगर हमें कहना होगा उन सब मर्दों की किताब, तब हम कहेंगे किताबु
हुम यानी उन सब की किताब, उन सब मर्दों की किताब। मिसाल के तौर पर आइन बैतुहुम, उन सब मर्दों का घर कहाँ है। इसी तरह अबूहुम, उन सब मर्दों का वालिद ताजुरुन शहीरुन, एक फेमस ताजर है, मर्चेंट है। नोट दैट द वर्ड्स फॉर दे एंड दियर हैव द सेम फॉर्म, यानी दे, होम, उसके लिए दे है, दे, उसके लिए भी हुम है, यानी दे के लिए भी हुम है, और दियर उसके लिए भी अरबिक में हुम है। यानी हमने देखा था हुआ का जो जर प्रोनाउन है वो है हु, शक्ल तब्दील हो जाती है। लेकिन हुम जो है, इसका जो जर वाला प्रोनाउन है वो भी हुम ही है, सेम है। जब हम किताब के साथ मिलाएंगे हुआ बनेगा किताब हु। इसी तरह जब हम किताब के साथ मिलाएंगे हुम, वो रहेगा सेम किताब हुम या कुतुबु हुम, मिसाल के तौर पर। फिर कहते हैं वी हैव लर्नड ज़हब, ही वेंट, नाउ दे वेंट, यानी वो सब, ज़हब मतलब वो एक मर्द गया। अब अगर हमें कह रहा होगा वो सब मर्द गए, तब हम कहते हैं ज़हबू, वाव ऐड करते हैं और बा पर दमा देते हैं, और लास्ट पर एक अलिफ ऐड करते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में नहीं होता है, खाली ऐड किया जाता है। नोट दैट देयर इज एन अलिफ एट द एंड ऑफ द वर्ड विच इज नॉट प्रोनाउंस्ड, ये खाली ऐड किया जाता है अलिफ, इसकी वजह क्या होती है वो हम आगे देखेंगे कि ये अलिफ ऐड क्यों किया जाता है। फिलहाल हम याद रखेंगे कि ज़हबा का प्लूरल फॉर्म है ज़हबू। इससे पहले हमने देखा था फ़अला ज़हबा, और हमने देखा था फ़अलत ज़हबत मुअन्नस के लिए। इसी तरह हमने देखा था फ़अलत, यानी तुम, एक मर्द ने कोई काम किया। इसी तरह हमने देखा था फ़अलति, तुम, एक औरत ने काम किया। अब गाइब प्लूरल के लिए जो वर्ब है, वर्ब का पैटर्न है पास्ट में, वो है फ़अलू, फ़अलू, वाव ऐड किया जाता है, लाम पर दम्मा दिया जाता है, ज़हबू, फ़अलू, यानी उन सब मर्दों ने कोई एक्शन किया पास्ट में। जैसे ज़हबू, वो सब मर्द गए। नोट दैट देयर इज एन एलिफ एट द एंड ऑफ द वर्ड विच इज नॉट प्रोनाउंस्ड, ये हमने देखा। फिर कहते हैं नोट दैट द प्रोनाउन दैट वी हैव लर्नड इन दिस पार्ट ऑफ द लेसन इज मैस्कुलिन, या इस लेसन में हमने मैस्कुलाइन प्रोनाउन सीखे। वी विल लर्न द फेमिनाइन प्रोनाउन एट पार्ट बी, इस लेसन के दो पार्ट है। पार्ट ए में हमने देखा फेमिनाइन प्रोनाउंस, और पार्ट बी, सॉरी मैस्कुलाइन प्रोनाउंस, और पार्ट बी में हम इंशाल्लाह देखेंगे फेमिनाइन प्रोनाउन। और इस चैप्टर में हमें देखना है, इस पार्ट ए में लफ्ज बाज, बाज का मतलब है सम, और ये हमेशा मोस्टली ये मुजाफ की सूरत में आता है, यानी इसके बाद मुजाफ इलैह आता है। जैसे बाअदुहुम, यानी उनमें से कुछ, बाअदुहुम मुदर्रिसून, सम ऑफ देम आर टीचर्स, व एंड बाअदुहुम, सम ऑफ देम मुहंदिसून आर द इंजीनियर्स। अब हम लेसन की तरफ आते हैं, जो हमने इन नोट्स, इस इन पॉइंट्स में देखा, वो हम अप्लाई करके देखते हैं। शेख कहते हैं मन हाउलाइल फित्यतु तिवालु या अलियु। अल्फित्यतु ये जमा है फता का, अल्फता, फता का मतलब है नौजवान, अल्फित्यतु नौजवान लड़की, अल्फता अल्फित्यतु अला वजनी फ़िअला, यानी ये ब्रोकन प्लूरल है, फता फित्या फ़िअला। और हाउला ये हाजा का जमा है, और ये चूंकि ये आकिल है इसलिए हमने इस्तेमाल किया हाउलाई। मन हाउलाइल फित्यतु, ये सब नौजवान, अत्तिवालु ये सब लंबे नौजवान, कौन है, या अली, अत्तिवाल इसका पैटर्न है फ़िआल, फ़िआल, तिवाल इसका सिंगुलर है तवील, तवील ये एडजेक्टिव है, इसका प्लूरल जो फॉर्म है वो फ़िआल के वजन पर है अरब के यहाँ। तवील तिवाल, तवील यानी जो लंबा हो, तिवाल इसका प्लूरल। ये सब लंबे नौजवान लड़के कौन है ए अली। अली जवाब में कहते हैं हुम तुल्लाबुन जुदुदुन, वो सब नए तालिब इल्म है। तुल्लाब ये जमा है तालिब का, और इसका जो पैटर्न है वो है फुआल, फुआल। जुदुदुन इसका सिंगुलर है जदीद, और इसका जो पैटर्न है जुदुद का वो है फुउलुन, फुउलुन। जदीदुन इसका प्लूरल है जुदुदुन, फुउलुन, जुदुदुन, हम तुल्लाबुन जुदुदुन।
हम मुब्तदा, तुल्लाबुन खबर, जुदुदुन इसका नात। फिर कहते हैं मिन आइना हम, वो सब कहाँ से है? हम मिन अमरीका, वो सब अमेरिका से है। हम मुब्तदा, मिन अमरीका जार मजरूर शुभ जुमला खबर। अहुम जुमलाउका, देखिए जुमलाउका इसका सिंगुलर है जमील, यानी कलीग, क्लासमेट। जुमलाउका अला वजन फुआलाउ, फुआलाउ, जुमलाउ, जमील जुमलाउ। क्या ये वो सब तुम्हारे क्लासमेट्स है? नाम हम जुमलाई, हाँ वो मेरे क्लासमेट्स हैं। नाम हरफ जवाब, हम मुब्तदा, जुमला मुजाफ खबर या मुतकल्लिम मुजाफ इलैहि। हम फी फसली, वो सब मेरी क्लास में यानी मेरे साथ पढ़ते हैं मेरी क्लास में। हम मुब्तदा, फी फसल जार मजरूर शुभ जुमला खबर, फसल मुजाफ या मुतकल्लिम मुजाफ इलैहि। फिर कहते हैं अहुम मुज्तहिदून, क्या वो सब मेहनती है? देखिए मुज्तहिदून, वाव और नून लास्ट पर है, इसका जो सिंगुलर है वो है मुज्तहिद, यानी मेहनती, हार्ड वर्किंग। मुज्तहिद, मुज्तहिदून। और ये जमा मुजक्कर सालिम है। जुमला ये जमा मुकस्सर है। जुदुद ये भी जमा मुकस्सर है। तुल्लाब ये भी जमा मुकस्सर है। तिवाल ये भी जमा मुकस्सर है। फितिया ये भी जमा मुकस्सर है। फितिया फ़िअला, तिवाल फ़िआल, तुल्लाब फ़ुआल, जुदुद फ़ुअल, इसी तरह जुमला फ़ुअला, ये सब ब्रोकन प्लूरल्स थे। अब मुज्तहिदून ये जमा मुजक्कर सालिम है, यानी साउंड मेस्कुलाइन प्लूरल। अहम मुज्तहिदून, क्या वो सब मेहनती है? नाम, हाँ हम मुज्तहिदून वो सब मेहनती है। हम मुब्तदा, मुज्तहिदून खबर। देखिए हम प्लूरल है, इसलिए खबर भी प्लूरल आ गई। मुब्तदा प्लूरल है, खबर भी प्लूरल आ गई। मा अस्माउहुम, उन सब का नाम क्या है? अस्माउ ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर है इस्म। अस्माउ इसका वजन है अफ़आल, अफ़आल, बिल्कुल प्लूरल, अफ़आल के वजन पर अफ़आलुन। अस्माउहुम उन सब का नाम क्या है? अस्माउहुम उन सब का नाम यासिरुन व जकरिया व मूसा व अब्दुल्ला, उन सब का नाम यासिर, जकरिया, मूसा और अब्दुल्ला है। अस्माउ मुब्तदा मुजाफ, हम मुजाफ इलैहि, यासिरुन खबर, वाव हरफ अतफ, जकरिया मातूफ यासिर पर, ये सब फिर मातूफ है, वाव हरफ अतफ, मूसा मातूफ, वाव हरफ अतफ, अब्दुल्ला मातूफ। उन सब का नाम है यासिर, जकरिया, मूसा और अब्दुल्ला। फिर कहते हैं वमन हाउलाइ रिजालु अल किसारु, और ये सब छोटे कद के मर्द कौन है? अर्रिजाल ये भी अला वजन फ़िआल, ये ब्रोकन प्लूरल है रजुल का। रजुलन एक आदमी, रिजाल बहुत सारे आदमी, फ़िआल। इस तरह किसार ये भी फ़िआल के वजन पर है, इसका सिंगुलर है कसीर, यानी छोटे कद का, प्लूरल किसार। हम हुज्जाजुन, ये सब हाजी किराम हैं। हुज्जाज फ़ुआल के वजन पर, फ़ुआल, जैसे तुज्जार, फ़ुआल। हम मुब्तदा, हुज्जाज खबर। मिन आइना हम, वो सब कहाँ से है? बादुहुम मिन अस्सीन, उनमें से कुछ चाइना से है। व बादुहुम मिनल याबान, और उनमें से कुछ जापान से है। बादु मुब्तदा मुजाफ, हम मुजाफ इलैहि, मिन अस्सीन जार मजरूर शुभ जुमला खबर, वाव हरफ अतफ, बादु मुब्तदा मुजाफ, हम मुजाफ इलैहि, मिनल याबान जार मजरूर शुभ जुमला खबर। फिर कहते हैं अयनल मुस्तफ़ा व अस्तिक़ाउ, मुस्तफ़ा और उसके साथी कहाँ है? उसके दोस्त का है। अज़दिका अला वज़न अफ़इला, अला वज़न अफ़इला, इसका सिंगुलर है सदीक। ज़हबू इलल मतअम, वो सब गए रेस्टोरेंट। देखिए अज़दिका प्लूरल है, थर्ड पर्सन है और मैस्कुलाइन है, उसके लिए जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो है फ़अलू के वजन पर, ज़हबू, फ़अलू, ज़हबू इलल मतअम, वो सब गए रेस्टोरेंट। इसमें ये जो वाव होता है, ये फाइल को यानी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रोनाउन होता है, ये वाव, ये खास होता है फेल माजी के साथ। ये वाव ये रिप्रेजेंट करता है
जमा मुजक्कर थर्ड पर्सन को, जमा मुजक्कर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट को, फाइल को। वाव का मतलब है यहाँ पर वो सब, जहबू यानी वो सब जहब गए, इलल मतअम रेस्टोरेंट। उसके बाद है तमारीन, वो हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हमने आज जो अहम चीज़ देखी इस लेसन में, वो है अलजम, नाउन्स और एडजेक्टिव्स का प्लूरल फॉर्म। और हमने कहा कि जमा जो होता है वो दो किस्मों का होता है, जम उन सालिमुन यानी साउंड प्लूरल, और वो साउंड प्लूरल दो किस्मों में होता है, जमा मुजक्कर सालिम, और वो ऐसा प्लूरल होता है जिसके लास्ट पर वाव और नून ऐड होता है। और जमा मुअन्नस सालिम ये ऐसा प्लूरल होता है जिसके लास्ट पर अलिफ और ता ऐड होता है। फिर जमा मुकस्सर यानी ब्रोकन प्लूरल, ये जम और किल्ला होता है और जम और कसरा होता है, और इसके पैटर्न्स होते हैं, जैसे फ़ुउलुन, फ़िआलुन, अफ़इलतुन, जैसा कि हमने लेसन में देखा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।